Hello everyone. So students, I welcome you all once again. So this is the eighth lecture on acid, bases and salts. तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने पीएच ऑफ सॉल्ट पे बात किया था. आज हम लोग विल टॉक अबाउट कॉमन सॉल्ट. हम लोग कॉमन सॉल्ट पे बात करेंगे. डू यू नो व्हाट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट? NaCl. NaCl को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट. NaCl नेम इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम chloride. So this is the salt that we used as a food. So common salt is used as a food. Used as a food. So NaCl अगर आप देख सकते हैं कि NaCl contain Na plus plus Cl minus. तो can I say sodium hydroxide? Sodium hydroxide, that is NaOH, plus hydrochloric acid HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप रिएक्ट कराएंगे, सो व्हाट यू विल गेट NaCl. सॉरी, इट इज NaOH plus HCl, isn't it? So the source of NaCl is seawater. But seawater also contain other dissolved salts. Other dissolved salts. So from there NaCl can be obtained. Acha. There is another source of NaCl that is called as rock salt. Have you heard about this? सुना है ना आपने? ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, है ना? तो रॉक सॉल्ट also contain NaCl along with other salts, and it is very healthy. Why? Because it doesn't contain just NaCl, it also contains some other useful salt. Now how it is formed? How it is formed? So it is assumed, इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण नहीं है, but assume that the sea of bygone ages dried up. Sea of bygone ages dried up to give rock salt. To give what? Rock salt. Clear? Is it clear to everyone? Now student, this common salt NaCl is a very important ingredient for the formation of many important other compounds. So it is important as it is source of many other compounds. Important as it is source of many many other compounds. तो चलो एक एक करके देखते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम NaCl. ठीक है? So let's see कि how NaCl can be source of many other compound or raw material for many other chemicals. So I'm writing as common salt as a
common salt as source of और रॉ मटेरियल ऑफ, सोर्स के जगह आप रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल ऑफ मेनी अदर कंपाउंड, मेनी अदर कंपाउंड्स। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इससे क्या क्या बन सकता है, तो NaCl से NaOH प्रिपेयर हो सकता है, इससे Cl2 फॉर्म होता है, इससे ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करने में Cl2 मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है स्टूडेंट्स। देन वॉशिंग सोडा मिल जाता है, बेकिंग सोडा यहां से बनता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, वॉशिंग सोडा बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, एंड सो ऑन, है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ मेनी अदर कंपाउंड। नाउ क्वेश्चन इज हाउ इट बिकम सोर्स ऑफ मेनी अदर कंपाउंड, ये करते कैसे हैं, है ना। सो मेनी अदर कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय electrolysis of solution of NaCl gives NaOH, Cl2 and H2. So Cl obtain Cl2 from here, NaOH obtained from here can be used to prepare all these compounds. Now when we are saying electrolysis, so what is electrolysis? Let's try to understand this. So this is the diagram that I have taken it from what, where I have taken it from NCERT, है ना। The student, I let me zoom it for your clarity. So you can see over here, you can see over here a tank is used. This is the tank, this is the tank, you can see this is the tank we have used, clear hai? This is the tank that we are using, this is the tank. Now in this tank we have taken what, a membrane is there, a membrane is there, and we have taken brine. Now what is brine? Brine is NaCl solution. Matlab when NaCl is dissolved in water, NaCl is dissolved in water, it is called as brine. ये एक important terminology है, एक word है जो आपको पता होना चाहिए. What is brine? Brine is the solution of what? Sodium chloride, aqueous solution of sodium chloride. It is aqueous solution of sodium chloride. So from here brine is entering. अब यहां से आप देखो what we are obtaining, मैंने कहा जब आप NaCl with water का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, NaCl with water का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, so what you get is you get NaOH, aqueous मतलब water के फॉर्म में रहता है, प्लस Cl2 प्लस H2. सो NaOH ब्राइन सॉल्यूशन से NaOH और ब्राइन सॉल्यूशन यहां से आपको मिल रहा है, isn't it? यहां से हाइड्रोजन गैस आपको निकलता दिख रहा है, यहां से क्लोरीन गैस निकलता दिख रहा है. अब इलेक्ट्रोलिसिस मींस ब्रेकिंग यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो आप यहां स्टूडेंट दो रॉड देख सकते हैं, दिस इज एनोड रॉड एंड दिस इज कैथोड रॉड, है ना. रॉड कनेक्टेड टू नेगेटिव चार्ज is called cathode
and rod which is connected to positive charge is called as anode. क्लियर है? अब स्टूडेंट जैसे आपने NaCl सॉल्यूशन डाला है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर एडिंग Na सॉल्यूशन, सो यू विल हैव Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस वाटर मॉलिक्यूल, है ना? अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वी हैव टू रॉड्स, वी हैव टू रॉड्स। कौन कौन से? एक तो कैथोड है और दूसरा एनोड है ना? एक तो कैथोड है और दूसरा एनोड है। सो व्हाट इज कैथोड? कैथोड मींस नेगेटिव चार्ज्ड एंटिटी, है ना? एंड व्हाट इज एनोड? एनोड इज जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना? तो एनोड की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो एनोड की तरफ जाएंगे। सो क्लोरीन आयन विल गो and it will lose its electron. It will lose its electron to give chlorine atom. When two chlorine atom do so, it produces Cl2 gas. तो आप देख सकते हैं कि आपको एनोड पे Cl2 गैस बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। अब क्लोरीन जो निकल रहा है, इट इज used in many purpose like water treatment, swimming pool, PVC, disinfectants, CFC and pesticides में यूज होता है। Similarly students, तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज इज कमिंग टुवर्ड व्हाट? पॉजिटिव चार्ज रोड। अब आप बोलेंगे कि सर Na, why Na is not Na जाना चाहिए नेगेटिव रॉड की तरफ, तो बोलता है नहीं, Na जनरली Na प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na नहीं बनाता है। दिस इज नॉट करेक्ट, ये आसानी से नहीं होता है, बिकॉज Na की लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम है। तो ऐसे केस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस गोज into the system and it accept electron from cathode and hydrogen gas is generated, जो आपको यहां दिख रहा है। So it can be used as a fuel, it ammonia for fertilizer and many other purpose, है ना? अब एक एक करके हम लोग इसके डिटेल पे डिस्कशन करेंगे। तो इट इज क्लियर, इलेक्ट्रोलिसिस इज क्लियर। चलो एक बार फिर से मैं बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। सो इलेक्ट्रोलिसिस करते समय व्हाट वी ऐड Na plus, we add Na plus and Cl minus. So Cl minus move toward positive rod, giving you chlorine gas, and as sodium cannot accept electron to give Na plus, तो हाइड्रोजन वाटर का जो वाटर है वहां से H plus मूव इन। अब जब H प्लस जाता है तो H प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट अगर वाटर से H प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है तो आप देख सकते हैं OH माइनस जो है वो सिस्टम के अंदर है, तो Na प्लस एंड OH माइनस कंबाइन टू गिव यू NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया आपको, क्लोरीन मिल गया आपको और हाइड्रोजन मिल गया आपको। इसी को हम लोग रिएक्शन में कैसे लिखते हैं? So electrolysis of brine, if I write electrolysis of brine, brine is what? NaCl का aqueous solution. So what is the reaction? 2 times NaCl plus 2 times H2O, ये balanced chemical equation है। It will give you 2 times NaOH plus Cl2 गैस एंड H2 गैस। अब कौन से रॉड पे कौन सा गैस निकलेगा, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट दिस प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर
अल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं. So electrolysis of NaCl is called as chlor-alkali process. Chlor is for chlorine because chlorine is produced in this reaction. ये जब हो रहा है तो क्लोरीन, एंड अल्कली इज अल्कलाइन, NaOH, इसे अल्कली भी कहते हैं ना, अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड. तो therefore this reaction is also called as what? Chlor-alkali process. So electrolysis of brine is called as chlor-alkali process. So chlorine gas comes out, ये कहाँ नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो ये कहाँ आएगा, एनोड पे आएगा. So at anode chlorine gas is coming out, therefore this is called as chlor-alkali process. Is it clear to everyone? समझ में आ गया सबको? So what is chlor-alkali process? Chlor-alkali process is nothing but electrolysis of brine, which give you alkali as NaOH, and chlorine gas is produced at anode along with hydrogen gas produced at cathode. Is it clear? So ये तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं. अब नाउ क्वेश्चन इज कि ये तीन प्रोडक्ट मुझे इलेक्ट्रोलिसिस से मिल तो गए, अब ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको यहां दिखाया है यूजिंग दिस डायग्राम दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव टू दैट हाउ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉमन सॉल्ट act as a source or raw material for many other compounds. We'll discuss it, है ना? तो सबसे पहले the first very important compound is bleaching powder. क्या है? bleaching powder. Do you know the formula of bleaching powder? It is very, very important. Bleaching powder is COaCl2. अब CaOCl2 exactly exist as Ca2 plus OCl minus and another Cl minus. ये exactly ये तीन एक कैटायन और दो एनायन होते हैं और इसे हम लिखते हैं CaOCl2, ऐसा है ना. दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. तो जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ था फ्रॉम electrolysis of brine, that can be used to produce bleaching powder, है ना. how it is used to produce bleaching powder? तो आप ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आसानी से अवेलेबल है और उसे रिएक्ट करवा लीजिए क्लोरीन गैस से. सो व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट COCl2 plus H2O, and this is nothing but bleaching powder. सो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन का ये मेथड है. सो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन यूजिंग क्लोरीन गैस, but chlorine gas can be easily obtained from what? Electrolysis of NaCl. Clear? So this is one of the source of what? This is one of the source. So brine is one of the raw material for the preparation of bleaching powder. So how to produce bleaching powder? It is clear. Now what are the uses of bleaching powder? Ye student, for 10th CBSE board examination it become very important. Uses. देखो वहां पर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर uses of bleaching powder. So bleaching powder is used for bleaching of, bleaching means cleaning, है ना, bleaching of cotton and linen, cotton and linen in textile industries, दूसरा यूज इज इट इज यूज्ड फॉर bleaching of
wood pulp in paper industry. है ना? Even it is sometimes used in laundries. I can say it is used in laundries for bleaching clothes. Fourth one is it is used as oxidizing agent in chemical industries. Oxidizing agent in chemical industries. And the last one is it is used to kill germs in what? Water. है ना? To make drinking water free from germs. For making drinking water free from germs. Even it can be used in swimming pools as a disinfectants, है ना? So this is all about bleaching powder. So this is the first compound that can be obtained using chlorine, and chlorine is obtained from what? It is obtained by electrolysis of brine. Now we will go for the second very important compound. Second very important compound is baking soda. Baking soda. Do you know the formula of baking soda? Baking soda is NaHCO3. Baking soda is NaHCO3. It is sodium hydrogen carbonate or bicarbonate. Hydrogen carbonate, or it is also called as sodium bicarbonates. ये बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन बेकिंग पर्पस, है ना? केक्स बनाने में यूज होता है, पकौड़ा बनाने में यूज होता है, क्रिस्पी पकौड़ाज आपने खाए होंगे घर पे, isn't it? So and it is used for baking purpose, है ना? तो यूज किधर है? uses baking in kitchen. क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए यूज होता है. क्रिस्पी पकौड़ास, है ना? Even it is used for fast cooking. फास्ट कुकिंग के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं. सो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? नाउ क्वेश्चन इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. तो इट इज वेरी सिंपल. चलो इसे मैं लेट मी यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस. NaOH लेते हैं, NaCl ले लेते हैं. NaCl is what? Sodium chloride with water plus CO2 plus NH3. जब स्टूडेंट ये आप यूज करेंगे, आप ये इसको रिएक्ट कराएंगे, सो व्हाट यू विल गेट प्रोडक्ट एज
अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, and NaH, sodium hydrogen carbonate, is nothing but it is called as what? It is called as baking soda. अब अगर मैं आपसे कहूं कि कैन यू टेल मी NaHCO3, ये जो है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका pH जो होगा वो कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक? कैन यू टेल मी? सो स्टूडेंट, इट इज वेरी सिंपल. ये किससे बना होगा? NaOH. ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस. सो डू इट हैव एनी इफेक्ट ऑन pH? आई विल से नो, है ना. और एसिड कौन सा लिया है? H2CO3, एंड H2CO3 इज अ वीक एसिड, है ना, इज अ वीक एसिड. तो ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? बेसिक, क्योंकि वीक एसिड सोल्यूशन को क्या करेगा? बेसिक. तो इट इज अ माइल्ड बेसिक salt. Remember it. NaHCO3 is a mild basic salt. Clear? Is it clear? अब student, how baking soda is used in kitchen? What is the science behind the using baking soda in the kitchen, and which can, like, it can help in fast cooking or baking or making crispy pakoras? How it is done? तो देखिए, what happens जब आप कभी बेकिंग सोडा को हीट करते हो स्टूडेंट. सो व्हाट हैपेंस, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. जब आप हीट करते हो तो इट डिकम्पोज टू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. अब ये जो CO2 गैस निकल रहा है, इट इज यूज्ड टू इन द बेकिंग पर्पस, है ना. अब इससे this is the thing that help in cooking fast. अब ये कैसे होता है, इस बात को समझने का ट्राई करते हैं, है ना. तो बिफोर दैट व्हाट वी हैव टू नो इज वी हैव टू नो यूज ऑफ बेकिंग सोडा. यूज ऑफ बेकिंग सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूज ऑफ बेकिंग सोडा. अब पहले मैंने आपको थोड़े कुछ एग्जाम्पल बताए. अब नाउ आपको बोर्ड में कैसे लिखना है उस पर थोड़ा बात करते हैं. तो सबसे पहले बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं. अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, है ना. सो बेकिंग पाउडर इज नथिंग बट बेकिंग सोडा प्लस mild acid, edible acid basically, है ना. That is called as what? That is called as baking powder. So what is baking powder? It is a mixture of baking soda with a mild edible acid. जैसे mild edible acid is, one of the acid is tartaric acid. आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, oxalic acid, acetic acid. So one of the mild is tartaric acid. One of the mild acid is tartaric acid. तो रिमेंबर इट, जब कभी आप बेकिंग सोडा को किसी माइल्ड एसिड के साथ रिएक्ट करते हो स्टूडेंट्स, तो व्हाट यू गेट इज, यू गेट H2O प्लस CO2 प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड. एसिड का एनायन पार्ट बचा हुआ है ना, तो एनायन एंड Na प्लस विल फॉर्म अ सॉल्ट. H2CO3 यहां से जनरेट होता है, H2CO3, और आपको पता है कि H2CO3 डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस प्लस CO2 में. सो दिस CO2 मूव्स आउट एज द गैस, और गैस बाहर प्रोड्यूस होने के कारण इट क्रिएट अ पोर्स. तो आपके जो केक जो बहुत सारा स्पॉन्जी होता है, जो स्पॉन्ज उसमें रहता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ CO2.
जब कुकिंग होता रहता है तो गैस CO2 पासेस आउट और वो कैसा है, पोर्स जनरेट करता है, एंड दैट मेक्स स्पॉन्जी केक्स जो होते हैं वो स्पॉन्जी इसके कारण होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो एक बात यहां लिख सकते हैं, द CO2 प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, द CO2 प्रोड्यूस्ड ओवर हियर इज व्हाट cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. So CO2 produced make bread and cake soft and spongy, है ना? Clear? So this is the first use. Now second use of baking soda is, or baking powder or baking soda is, second use. The second use is it is used as एंटासिड्स। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो बेकिंग सोडा अगर आपने खा लिया तो भी आपको रिलीफ मिलेगा। एंड थर्ड वन इज इट इज यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। क्लियर? तो हमने क्या देख लिया स्टूडेंट? हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे देख लिया, हमने बेकिंग सोडा के बारे देख लिया। नाउ द नेक्स्ट very important compound that we have to see over here, third important compound is washing soda. What is the formula of this? The formula of this is Na2CO3 dot 10H2O. This is the formula of washing soda. Is the another compound that is obtained from sodium chloride. How it is obtained? Let's have a look on it. So washing soda is also obtained using what? It can be obtained using brine. ठीक है ना? तो स्टूडेंट NaOH जो हमें मिला था NaCl से, आपने देखा था कि what we were getting NaHCO3। जब आप इसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो you will get Na2CO3। क्लियर? अब now remember it, the name of this is sodium carbonate. Sodium carbonate. And in fact अगर आपको पूरा नाम बोला जाए तो मैं बोलूंगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 के लिए डेका वर्ड गया है ना? तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपने ये देखा था कि हाउ व्हेन बेकिंग सोडा, हाउ बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड, है ना? सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। ये हमने देखा था, इजंट इट? देखो इस स्लाइड में हमने ये देखा था कि whenever this is heated, Na2CO3 is heated, so what you will get? You will get Na2CO3 plus H2O plus CO2. Is it clear? तो हमने देखा था कि जब कभी आप NaHCO3 ट्वाइस को हीट करोगे तो what you will get? You will get Na2CO3 plus H2O plus CO2। अब इसे फिर से Na2CO3 जो मिला है उसे अगर आप you leave it for recrystallization, if you leave it for recrystallization,
So what you will get is Na2CO3 will absorb 10 molecule of water to give you Na2CO3 dot 10H2O, और इसे ही हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं. इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? So what is washing soda and how to obtain it? Hopefully it is clear with everyone. Now let's go for the use. It's very important. Use of washing soda. अब ये CBSE के लिए use of bleaching powder, use of baking powder, use of washing soda, it become very, very important. So the very first thing is that washing soda or Na2CO3 is used as washing soda is used in glass industries, it is used in soap industries, and it is used in paper industries. The very first use of washing soda is this one. Second one is it is used in manufacturing of sodium compound like borax. Third one is it is used as cleaning agent in domestic purposes. Used as cleaning agent in domestic purposes. घर पे यूज करते हैं, है ना, क्लीनिंग करने के लिए. And the fourth one is it is used for removing permanent hardness of water. Permanent hardness of water. So these are the use of washing soda. Now students, we are going to the last part of this chapter. This is the last part of the chapter, that our salts crystal are really dry. So in fact, we will be discussing over here water of crystallization. So topic is water of crystallization. Water of crystallization, है ना. So what is water of crystallization? हम इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे. Water of crystallization, है ना. What we are going to discuss here, water of crystallization. What is this water of crystallization? पहले ये समझने का ट्राई करते हैं. तो स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि इफ यू हैव कॉपर सल्फेट, है ना. सो कॉपर सल्फेट सॉल्ट अगर आप लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्ट, सो बेसिकली इट इज ब्लू इन कलर. इट इज व्हाट? ब्लू इन कलर. और जब आप इसे हीट कर देंगे, व्हेन यू विल हीट इट, तो हीट करने पे व्हाट हैपेंस, दैट दिस crystal turns into white. Now thing is what happens, ऐसा क्या हो गया कि जो
कॉपर सल्फेट ब्लू था, हीट करने पे व्हाइट कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है दिस वन, एंड ये जो वाटर है दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, water of crystallization. So what is actually water of crystallization? Water of crystallization is the number of water molecule that will be like absorbed when crystal of a salt is formed per unit molecule of the salt. तो जब आप इसे स्टूडेंट हीट करते हैं, सो व्हाट हैपेंस, सो कॉपर सल्फेट तो मिलता है बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाता है, और जब ये बाहर निकल जाता है सो इट टर्न्स इनटू व्हाइट कलर। और जब आप इसे छोड़ देंगे फॉर सम टाइम, इफ यू लीव इट, तो फिर से इट विल एब्सॉर्ब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू अगेन फॉर्म CuSO4.5H2O। क्लियर है? एंड दिस विल टर्न्स into blue solution or blue crystal. Now student, definition of water of crystallization. So how to define water of crystallization, ये बहुत important हो जाता है as far as board examination is concerned. So water of crystallization का definition क्या है? The definition is it is fixed number of water molecule present in one formula unit of salt. Like कॉपर सल्फेट के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 5 यूनिट ऑफ H2O। उसी तरह अगर आप बेकिंग सोडा की बात करेंगे या वॉशिंग सोडा की बात करेंगे, तो वॉशिंग सोडा में हमने देखा था Na2CO3 डॉट 10H2O। सो ये दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इज इट क्लियर? थोड़ा और कुछ मॉलिक्यूल्स को देखते हैं जहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इज स्टूडेंट CaSO4, calcium sulfate. It have 2 unit of H2O. So what is water of crystallization of calcium sulfate? It have 2 unit of water, 2 unit of H2O, है ना? So CuSO4.2H2O is called as gypsum. ये पता है जिप्सम क्या होता है? जिप्सम देखा है आपने? जिप्सम इज नथिंग बट, आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस तो सुना होगा, POP, है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस तो सुना होगा आप सबने। सो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, सॉरी, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इट इज नथिंग बट CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो व्हेन इट एब्सॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल, है ना, वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करता है 1.5 यूनिट ऑफ H2O to give CaSO4.2H2O. This is called as gypsum. इसे जिप्सम कहते हैं और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। सो आपने देखा होगा बेसिकली क्ले, बहुत सारी मूर्तियां बनाने के लिए POP यूज करते हैं, घर पे POP यूज करते हैं। अगर पैर में फ्रैक्चर हो गया तो उसे फिक्स करने के लिए डॉक्टर POP यूज करते हैं। तो ये जो पाउडर फॉर्म होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इन पाउडर फॉर्म, है ना, इट इज हेमी हाइड्रेटेड। इसका फुल फॉर्म जो होगा, इसका फुल नाम जो होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट. व्हाट इज दैट? हेमीहाइड्रेट मींस हेमी मतलब हाफ, हेमीहाइड्रेट. इसे हम क्या करते हैं? पीओपी. आपको पता होना चाहिए. अब पीओपी में जब वाटर ऐड करते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है. तो जिप्सम इज व्हाट? CaSO4.2H2. एंड जब ये ड्राई अप होता है, व्हेन इट गेट ड्राइड अप, ये बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है. isn't it clear? Is it clear to everyone? So is it clear? So जब वो ड्राई अप हो जाता है, so एक बार ड्राई अप हो गया, so it have a rigid structure, rigid हो जाता है, and it is used. तो यूज कहां होगा स्टूडेंट? यूज ऑफ जिप्सम और पीओपी इज व्हाट? क्या बनाने के लिए? बेसिकली पॉट्स बनाने के लिए यूज होते हैं, है ना. डेकोरेटिव्स बनाने के लिए यूज होते हैं. मेडिसिनल यूज होता है टू फिक्स द फ्रैक्चर, है ना. सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स के लिए इसे यूज करते हैं. सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, मूर्तियां बनाने के लिए यूज करते हैं, एंड मेनी अदर यूजेस आर देयर. So can you tell me what is like water of crystallization of POP? So water of crystallization of POP is what? Half times H2O. Whereas water of crystallization of gypsum is what? 2 times H2O. तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे स्टडी किया. थोड़ा थेरेटिकल था बट बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. सो हियर एंड्स आर दिस चैप्टर ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर attending, for studying seriously. So make proper notes and solve each and every question that is given in your NCERT, है ना. And please send it me as a homework. So we will end over here. Thank you very much. हम लोग यहां बंद कर रहे हैं.